السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سید مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو یہ بات ہے 14 اگست 2005 صبح کے وقت کی، جب ہیلیس فلائٹ سائپر کے لارناکا ایئرپورٹ سے گریس کے ایتھنز ایئرپورٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ صبح کے قریب 9:07 پر فلائٹ نے اڑان بھری۔ اس وقت اس جہاز میں 115 پیسنجر سمیت 6 کرو ممبر موجود تھے۔ اس جہاز کو اڑانے والے پائلٹ 58 سالہ جرمن ہینس جرجن مارٹن تھے، جنہیں تقریباً 16,900 فلائٹ گھنٹوں کا تجربہ تھا۔ وہیں ان کے کو پائلٹ کے طور پر موجود 51 سالہ پیمپوس سالم تھے، جنہیں تقریباً 7,549 گھنٹے فلائٹ اڑانے کا تجربہ تھا۔ وہیں فلائٹ اٹینڈنٹ کے طور پر اینڈریاس پروڈروما موجود تھے۔ فلائٹ کے اڑان بھرنے کے 5 منٹ بعد یعنی 9:12 پر جہاز 12,040 فٹ کی اونچائی پر پہنچ گیا۔ اس اونچائی پر پہنچنے کے بعد ہی جہاز میں ایک الارم بجنے لگتا ہے۔ جب اس الارم کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ ٹیک آف کانفیگریشن وارننگ الارم تھا، جسے دیکھنے کے بعد دونوں پائلٹ حیران ہو گئے، کیونکہ ٹیک آف کانفیگریشن وارننگ الارم تب بجتا ہے جب جہاز گراؤنڈ پر موجود ہوتا ہے اور اڑان بھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں 12,000 فٹ کی اونچائی پر الارم بجنے کا مطلب دونوں پائلٹ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایسے خطرے کی حالت میں پائلٹ نے ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ جہاز کا ٹیک آف کانفیگریشن الارم بج رہا ہے۔ پائلٹ ایئر ٹریفک کنٹرول کو یہ بتا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں جہاز کے کاکپٹ میں موجود کنٹرول پینل میں بہت سارے الارم ایک ساتھ ہی بجنے شروع ہو گئے، اور ان الارم کی وجہ سے پائلٹ کی آواز ایئر ٹریفک کنٹرول تک پہنچنا بند ہو گئی۔ ساتھ ہی جہاز کا ماسٹر کوشن الارم بھی بجنے لگا، جس کا مطلب تھا کہ جہاز کے کئی سارے سسٹم ایک ساتھ اوور ہیٹ ہو چکے ہیں۔ ایسے میں دونوں پائلٹ کی پریشانیاں بڑھنے لگی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ ادھر یہ سب دیکھ کر جہاز میں افراتفری پھیل گئی۔ کرو ممبر لگاتار پیسنجرز کو حوصلہ دے رہے تھے۔ سبھی پیسنجرز کو سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ ایسے میں ان سب کے آکسیجن ماسک اپنے آپ ہی نیچے آ گئے۔ دراصل جب جہاز میں آکسیجن کا لیول کم ہوتا ہے تو آکسیجن ماسک اپنے آپ ہی نیچے آ جاتے ہیں۔ اس دوران جہاز تقریباً 30,000 کی اونچائی پر تھا۔ پائلٹ بار بار ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کر کے اپنی مشکلات بتانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز ایئر ٹریفک کنٹرول تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور کچھ ہی دیر میں جہاز کا ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد بھی ایئر ٹریفک کنٹرول نے بار بار پائلٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ جہاز اب لگاتار اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ عام طور پر اس روٹ پہ فلائٹ کو تقریباً 1 گھنٹے 45 منٹ کا وقت لگتا ہے، یعنی قریب 10:45 پر اس جہاز کو ایتھنز ایئرپورٹ پر پہنچنا تھا۔ 9:23 پر جہاز 34,000 فٹ کی اونچائی پر پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد 9:37 پر یہ جہاز ایتھنز فلائٹ انفارمیشن ریجن پر پہنچ گیا۔ 9:12 سے 9:50 تک ایتھنز ایئر ٹریفک کنٹرول اس جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ اب 10:45 ہو چکے تھے اور اس وقت جہاز کو ایتھنز ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا، لیکن جہاز کا ابھی تک کچھ نہیں پتا تھا۔ کچھ خطرے کی وجہ سے گریس ایئر ٹریفک کنٹرول نے فوراً اپنے سب سے 2 بہترین فائٹر جیٹ F-16 کو جہاز ڈھونڈنے کے لیے روانہ کیا۔ کچھ ہی دیر میں ان فائٹر جیٹ نے ہیلیس فلائٹ 520 کو ڈھونڈ لیا۔ ان میں سے ایک فائٹر جیٹ اڑتے اڑتے اس جہاز
जहाज़ के बहुत करीब आ गया था ये देखने के लिए कि अंदर आखिर क्या हो रहा है। तो इस फाइटर जेट ने देखा कि जहाज़ के अंदर को पायलट की सीट पर कोई बैठा हुआ है। वहीं मेन पायलट अपनी सीट पर सर नीचे करके बेसुध हालत में पड़े हुए हैं। फिर ये फाइटर जेट पीछे गया और अब इसने पीछे वाली खिड़की से जहाज़ के अंदर का जायज़ा लिया। लेकिन फाइटर जेट के पायलट के लिए हैरानी की बात तो ये थी कि अपने बराबर में दो फाइटर जेट होने के बावजूद किसी भी पैसेंजर ने मुड़कर इनकी तरफ नहीं देखा। किसी भी पैसेंजर की तरफ से इन्हें कोई रिएक्शन नहीं मिला। तभी लगभग 11:49 पर फाइटर जेट के पायलट ने देखा कि एक शख्स जहाज़ के केबिन से होकर कॉकपिट की तरफ जा रहा है। कुछ ही सेकंड में ये शख्स पायलट सीट पर बैठा हुआ दिखाई दिया। कॉकपिट में बैठे इस शख्स को देखकर फाइटर जेट के पायलट ने इसे इशारा करके जहाज़ की मुश्किल के बारे में जानना चाहा। ये शख्स भी फाइटर जेट के पायलटों को कुछ बताना चाह रहा था लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पाया। तभी लगभग 1 मिनट बाद 11:50 पर जहाज़ के लेफ्ट इंजन ने काम करना बंद कर दिया और जहाज़ लेफ्ट साइड से झुककर तेज़ी से नीचे की तरफ जाने लगा। पायलट सीट पर बैठा वो शख्स जहाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन उससे कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। ठीक 12 बजे जहाज़ के राइट इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। जहाज़ का कंट्रोल अब पूरी तरह से खो चुका था। 12:04 पर जहाज़ तकरीबन एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रेविटो की पहाड़ियों में जाकर क्रैश हो गया और इसके क्रैश होने के साथ ही जहाज़ में मौजूद क्रू मेंबर समेत 121 पैसेंजर की मौत वाक़ई हो गई। दोस्तों ज़रा महसूस कीजिए कि 121 लोगों से भरा ये जहाज़ जब पहाड़ से टकराया होगा तो क्या गुजरी होगी उन फाइटर जेट के पायलटों पर जिन्होंने अपने सामने लोगों को मरता हुआ देखा और वो इनके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन इसके बाद ग्रीस में फ़्लाइट 512 क्रैश होने की खबरें आग की तरह फैल गई। फ़ौरन रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और 121 लोगों की डेड बॉडी को ढूंढ कर निकाला गया। लेकिन जब हादसे में मिले कुछ लोगों की ऑटोप्सी की गई तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। दरअसल जहाज़ में मौजूद ज़्यादातर लोग और पायलट जहाज़ के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। तो अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि पायलट जहाज़ के क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे तो जहाज़ का 2 घंटे तक कंट्रोल किसके पास था। जब तहकीक की गई तो पता चला कि पायलट की मौत के बाद जहाज़ को कंट्रोल एंड्रियास प्रोड्रोमा कर रहे थे जो जहाज़ के एक क्रू मेंबर थे और उन्हीं की आवाज़ आखिरी बार एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सुनाई दी थी। एंड्रियास ने ही 5 बार मैडे मैडे कहकर आखिरी बार मदद मांगी थी। Mayday. Flight 5. एंड्रियास के पास यूके कमर्शियल पायलट का लाइसेंस तो था लेकिन उन्हें इतना एक्सपीरियंस नहीं था कि बोइंग 737 जैसे जहाज़ को कंट्रोल कर सके। लेकिन उसके बावजूद वो इस जहाज़ को आबादी से दूर ले जाने में कामयाब रहे। जब एक्सपर्ट ने वाक़ये की वजह जानने के लिए जांच शुरू की तो इसमें सामने आया कि जहाज़ जब लेफ़्ट साइड से झुक गया था तो इसके लेफ़्ट इंजन में फ्यूल ख़त्म हो गया था। लेकिन अभी भी इस हादसे की जड़ तक पहुंचना बाकी था। तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र कंट्रोल पैनल के एक बटन पर पड़ी और ये बटन जहाज़ के प्रेशर को कंट्रोल करने का था। इस बटन को देखते ही ऑफिसर को सारी कहानी समझ में आ गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रेशराइज बटन पूरे जहाज़ में हवा के प्रेशर को कंट्रोल करता है। जहाज़ के बाहर लगे इंजन बाहर की हवा को थोड़ा थोड़ा करके अंदर भेजते रहते हैं ताकि जहाज़ में बैठे लोगों को ऑक्सीजन मिलता रहे। आमतौर पर इस प्रेशराइज बटन को ऑटोमेटिक मोड पर ही रखा जाता है और अगर इसे कभी मैनुअल मोड पर रखा भी जाए तो कैप्टन या को पायलट को इसका ध्यान रखना
रखना पड़ता है। अब हादसे की जड़ तक पहुंचने के लिए हम आपको एक दिन पहले ले चलते हैं, जब बोइंग 737 जहाज़ अपनी रूटीन सर्विस के लिए गया हुआ था। वहां इसको अच्छे से चेक करके सर्विस की गई और वहीं इसकी जांच करने वाले लोगों ने इसे मैनुअल मोड पर करके पायलट के हवाले कर दिया था। जहाज़ के उड़ान भरने से पहले पायलट और को पायलट का ध्यान ही नहीं गया कि जहाज़ का मैनुअल मोड चालू ही रह गया है, जिसकी वजह से जहाज़ में ऑक्सीजन की मिकदार कम होने लगी, जिसकी वजह से जहाज़ में बैठे मुसाफिरों को बेचैनी होने लगी। और जब कॉकपिट में बैठे पायलट को ये अलार्म सुनाई दिए तो वो इसके पीछे की वजह जानना शुरू कर दिए, लेकिन एक बार भी इनका ध्यान उस तरफ गया ही नहीं कि जहाज़ का प्रेशराइज बटन ऑन ही रह गया है। इस वजह से ही कॉकपिट का ऑक्सीजन लेवल कम हो गया था, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोशी की हालत में जाने लगे थे। जहाज़ के अंदर ऑक्सीजन मास्क तो सभी मुसाफिरों को मिल चुके थे, लेकिन कॉकपिट में ऑक्सीजन मास्क अपने आप ही नीचे नहीं गिरते, जिसकी वजह से दोनों पायलट बेहोश हो गए। साथ ही जहाज़ में मौजूद मुसाफिर और क्रू मेंबर भी एक एक करके बेहोश होने लगे थे, क्योंकि इनके पैसेंजर सीट पर लगे मास्क सिर्फ 12 मिनट की ही ऑक्सीजन दे सकते थे और ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सभी लोग अब आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रहे थे। जहाज़ अब ऑटो पायलट पर ही एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। एक वक्त ऐसा आया कि जब जहाज़ में मौजूद सभी लोगों ने दम तोड़ दिया, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और ये थे फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमा। अब आप भी यही सोच रहे होंगे कि आखिर एंड्रियास इतने वक्त तक कैसे ज़िंदा रहे। तो आपको बता दें कि एंड्रियास एक स्कूबा डाइवर थे, क्योंकि स्कूबा डाइवर लंबे वक्त तक अपनी सांस रोक सकते हैं, इसलिए वो अब तक ज़िंदा रहे। लेकिन अब ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी भी हालत ख़राब हो चुकी थी, लेकिन वो जैसे तैसे करके कॉकपिट तक पहुँचे और जहाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अटेंस तक पहुँचते पहुँचते ये जहाज़ मुसाफिरों की जगह उनकी लाशों से भर चुका था। एंड्रियास आखिर तक जहाज़ को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे रहे, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो सके और जहाज़ पहाड़ियों में जा टकराया और इसमें मौजूद 121 लोगों की भयानक मौत बाकी हो गई। इस हादसे के तकरीबन 15 महीनों बाद ग्रीस गवर्नमेंट ने इस हादसे की रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया कि इस हादसे में सिर्फ और सिर्फ एक बटन जिम्मेदार था, जहाज़ का प्रेशराइज बटन, क्योंकि ये बटन उस वक्त मैनुअल मोड पर था। लेकिन भले ही ग्रीस गवर्नमेंट ये समझती हो, लेकिन हमारी नज़र में असल जिम्मेदार सर्विस सेंटर के एम्प्लॉय थे, जहां जहाज़ रूटीन सर्विस के लिए गया था, क्योंकि उन्होंने इस प्रेशराइज बटन को ऑटो से मैनुअल पर कर दिया था, लेकिन इस बात की खबर किसी को भी नहीं दी थी। ऐसे में उन्हें या तो वापस ऑटो मोड पर डालना चाहिए था या पायलट को इस बात से आगाह करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर वो इतनी बड़ी लापरवाही नहीं करते तो उस दिन 121 लोगों को अपनी जान नहीं गंवाना पड़ती। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।